Good morning, students. Today we are doing second chapter from the subject computer, and this is for class 6th English medium. So let's begin with the first question. Take the correct answer. The internet is also a huge storage house of information. Internet पे बहुत सारी information store होती है. The companies such as Microsoft, Apple, Sun and others are losing billions of rupees due to software piracy. जो सॉफ्टवेयर की चोरी होती है, पायरेसी को हम चोरी कहते हैं. Application controls include input, output and processing, controls storage of information, etc. Fourth, Information Technology Act came into force on 17th October 2000. Now fill in the blanks. Ethics are benefits and rules. Property is something you own. Using references shows morality. Software piracy is a technique of illegal reproduction of distribution of software. Pirated software often do not have various key elements. True and false बताने हैं आपको. Ethics are disbeliefs and violation wrong. Natural disaster never causes a security violations. This is also wrong. Quality control ensures security during development stages. This is also wrong. A hacker breaks into the computer to get access information. This is true. A cracker breaks into the computer to steal password and files. Now answer the following questions. What is ethics? Why ethics is so important? क्या होगा इसका आंसर? So the answer is ethics are beliefs and rules. These rules guide us what is right and what is wrong. Ethics एक ऐसे rules है जो हमको बताते हैं क्या सही है और क्या गलत है. A mature sense ethics is something a person develop over a period of time. Due to this reason, parents, teachers and elders are supposed to exercise some authority over their children. Children are not expected to know how to make some decisions for themselves. कई बार बच्चे को पता नहीं होता है कि हम खुद से कैसे फैसला ले लें, तो माता पिता टीचर सब मिलजुल के उसकी मदद करते हैं. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से क्या समझते हैं? प्रॉपर्टी समथिंग यू ओन. यू हैव राइट्स ओवर योर प्रॉपर्टी. It is protected by law. Similarly, ideas and thinking produced by the mind are also protected by law. जैसे कि कोई ज़मीन है, उस पर किसी का हक है, तो उसको कौन बचाए रखता है? कानून बचाए रखता है. सिमिलरली अगर किसी के माइंड में कोई आइडिया आया है, कोई थॉट आया है किसी चीज़ को लेकर के, तो उस पर भी उसी का हक है और उसको भी लॉ बचा के रखता है. इट इज़ इलीगल टू यूज़ देम विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर और प्रोड्यूसर. The rights related to literacy, artistic work, inventions, discoveries, etc. are called intellectual property. ज़्यादातर चीज़ें जो कि आर्ट वर्क से रिलेटेड है, डिस्कवरी से, इन्वेंशन से, उन्हें हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन एनी सॉफ्टवेयर पायरेसी. आप क्या समझते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की पायरेसी से? सॉफ्टवेयर पायरेसी हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी. It leads to the job losses and revenue losses to the companies. इससे क्या होता है? हमारी जो इकोनॉमी है उस पर असर पड़ता है, लोगों की जॉब कम होती है इससे. You must avoid using pirated software. Legally speaking, even the possession of an illegal software is considered piracy. आपको ये सब पायरेटेड ऐप या पायरेटेड वेबसाइट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. सॉफ्टवेयर पायरेसी कैन बी द फॉलोइंग टाइप्स, और बहुत टाइप की हो सकती है सॉफ्टवेयर पायरेसी. Now define the following terms. What do you understand by the copyright? आप कॉपीराइट से क्या समझते हैं? Yes, so the answer is the C symbol. C enclosed within a circle. जब सी को हम एक सर्कल के अंदर लिखते हैं ऑन डिफरेंट आइटम्स लाइक बुक्स, बहुत सारी किताबों पे देखा होगा आपने, वेब पेजेस पे भी देखा होगा, तो ये सिंबल का मतलब होता है कॉपीराइट. दिस सिंबल इज जनरली प्रीफिक्स्ड बिफोर अ स्टेटमेंट.
ऑल राइट रिजर्व, इसका मतलब ये होता है कि सारे के सारे अधिकार रिजर्व है। डू यू नो व्हाट दिस स्टेटमेंट मीन्स, व्हाट इट इज यूज, ऑल द आइटम्स और information that have this symbol come under a copyright of the owner and it is said to be sole property of the owner. It is unlawful and unethical to use them without the permission of the owner। इसका मतलब ये होगा कि उस किताब या उस चीज़ के अंदर जो भी डेटा है उसकी सिर्फ और सिर्फ हक किसका है, ओनर का हक है, और अगर कोई इसे यूज़ करेगा तो वो अनएथिकल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पायरेसी, प्राइवेसी। प्राइवेसी का तो हम आंसर पढ़ ही चुके हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेसी। So privacy is an important aspect of life. It is desirable condition or a moral right of the person to be allowed a privacy in or his life. Privacy सबका अधिकार है और सबको मिलना भी चाहिए। It is rather unethical to infringe the privacy of other people without their consent. लोगों को बिना बताए उनकी प्राइवेसी से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्रैकर। A cracker is a person who breaks into a computer system just like a hacker. ये भी एक हैकर के जैसा काम करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक कर देता है विद एन इंटेंशन टू स्टील पासवर्ड। किस इंटेंशन से, पासवर्ड चुराने से या कोई फाइल्स चुराने से। दे मे सेल दिस इंफॉर्मेशन टू सम अदर पीपल फॉर मनी। ये इंफॉर्मेशन वो बाकियों को भी बेच सकते हैं। दे कॉज फाइनेंशियल डैमेज टू एन ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है, एक फाइनेंशियल डैमेज होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल डिजास्टर। These can cause violation. They must lead to operational problems in a computer system. Hurricanes, earthquakes, flood, etc. may prove devastating for companies. इससे क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर्स हमारी सिक्योरिटी को तोड़ सकते हैं और बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, हरिकेन्स हो गया, चक्रवात हो गए एंड सो ऑन। नाउ वायरस प्रोग्रामर। A virus programmer is a cracker who breaches into a computer system in order to steal information or cause harm to the computer system. They program dangerous viruses to get access to system. वायरस प्रोग्राम क्या होते हैं कि अगर सिस्टम में आ जाते हैं तो काफ़ी डैमेज कर देते हैं और चीज़ों को चुरा भी लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओनर। क्या होता है ओनर? एन ओनर इज द इंडिविजुअल कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट क्रिएटेड अ फाइल और डॉक्यूमेंट। एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं बनाता है उसे हम ओनर कहते हैं। फिर आता है हैकर। हैकर इज अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू कंप्यूटर टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड देयर। A hacker may not cause any harm to the system or organization, but hacking is still illegal and unethical. ये किसी को ऑथराइजेशन को या फिर किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान तो नहीं देता, बट स्टिल दिस इज अनएथिकल एंड अनलॉफुल। नेक्स्ट है आपका काउंटर फिटिंग। ओके, इट्स काउंटर फिटिंग। This is the process of making and distributing illegal copies of software packages that reproduce the developer's package. The illegal resemble the original copy. This is the process of making and distributing illegal copies of software packages. क्या होता है इसमें कि इलीगल कॉपी बनाई जाती है सॉफ्टवेयर पैकेजेस की और उसको फिर बेचा जाता है। दैट इज कॉल्ड काउंटरफिटिंग। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन अ हैकर एंड अ क्रैकर। आप हैकर और क्रैकर के बीच में क्या समझते हैं? सो द आंसर इज अ हैकर इज द पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। सो बेसिकली हैकर क्या करता है, सिस्टम को ब्रेक करता है, इंफॉर्मेशन निकालता है और बट किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा नुकसान नहीं देता। बट जो क्रैकर होता है सिमिलरली ये भी सिस्टम को ब्रेक करता है पासवर्ड चुराने की इंटेंशन से और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है ये ऑर्गेनाइजेशन को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय कंप्यूटर सिक्योरिटी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी ब्रीचेस आर देयर। कंप्यूटर सिक्योरिटी से आप क्या समझते हैं? कंप्यूटर सिक्योरिटी इंक्लूड
the various procedures and techniques that are designed to protect a computer from accidental or intentional theft, unauthorized access, or manipulation by an individual or for an organization. Computer security breaches can be broadly divided following categories: hardware breaches, software breaches, network, and natural disasters.